ارض مقدس سے آپ سب کو بہت بہت سلام اور خوش آمدید۔ اس وقت میں کھڑی ہوں ایک قدیم محل میں، اور شاید آپ جانتے ہیں کہ مصر میں فرعونوں کی سلطنت خداوند یسوع المسیح سے تقریباً 5000 سال قبل ہوئی۔ لفظ فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ایک ٹائٹل ہوتا تھا، اور مصر میں جتنے بھی بادشاہ آئے انہوں نے خود کو فرعون ہی کہلوایا۔ تو جی جناب، دیکھیں یہ محل۔ آپ تقریباً 3300 سال پہلے یہاں پر پیدا ہوئے، اور پھر انہی محلوں میں شہزادے کی حیثیت سے رہتے تھے، اور رامسس اول کے دور میں بہت ہی شان و شوکت اور اختیار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ بعد میں انہی محلوں میں آپ مصریوں پر حاکم تھے، اور رامسس دوئم جو آپ کا رضائی بھائی تھا، اس کے ساتھ مختلف پروگرامز، حکومتی سرگرمیوں، محفلوں اور جنگوں میں بھی شریک ہوئے۔ دونوں نے بچپن میں ایک ہی استاد سے تعلیم حاصل کی، اور رامسس دوئم کی نگاہ میں آپ نے بہت ہی عزت پائی۔ یہی وہ محل ہے جہاں پر حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون رامسس دوئم کے پاس بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے بار بار آتے رہے اور خدا کا پیغام سناتے رہے، لیکن فرعون ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا رہا اور بعد میں رب بالی تعالیٰ کے عذاب کا سامنا بھی کرتا رہا۔ قدیم دنیا میں فرعون نہایت طاقتور ہوتے تھے، اور ان کی فوج دنیا میں سب سے طاقتور فوج ہوتی تھی، اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ طاقت کے نشے میں فرعون خود کو خدا کا درجہ دیتے تھے، اور فرعون کی نافرمانی کا مطلب ہوتا تھا موت۔ جب آپ 80 برس کے تھے تو خدا کا پیغام سنانے کے لیے آپ مدیان کی سرزمین سے اسی محل میں آئے تھے اور فرعون کو خدا کا پیغام سنایا۔ جس کو فرعون نے اسی وقت رد کر دیا، اور پھر پورے مصر نے 10 آفتوں کا سامنا کیا۔ تو آپ اس قسط کو غور سے دیکھیں، اور بعد میں آپ سے کچھ سوالات بھی پوچھوں گی جس کے آپ نے مجھے جواب بھی دینے ہیں۔ تو چلیں غور سے دیکھیں۔ خداوند نے موسیٰ سے پھر کلام کیا اور اسے بتایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ مصریوں نے موسیٰ کا مذاق اڑایا، اس کے اپنے لوگوں نے اسے رد کر دیا کیونکہ فرعون نے ان کی غلامی کے بند کو سخت کر دیا تھا، پر موسیٰ کو خداوند پر بھروسہ تھا اور وہ اس کی فرما برداری کرتا رہا، اگرچہ وہ بھی یہ سب نہیں سمجھتا تھا۔ یہوہ کہتا ہے، اس لیے کہ تم نے میرے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دی، اب تمہیں معلوم ہوگا کہ میں ہی خداوند ہوں۔ مصر کا تمام پانی خون بن جائے گا۔ اس دفعہ کافی متاثر کن ہے، اس نے یہ کس طرح کیا؟ جاؤ میرے جادوگروں کو لے کر آؤ، دریائے نیل کا دیوتا اسے روکے گا۔ دیکھو میرے جادوگر بھی یہ کر سکتے ہیں، میں تمہاری جادوئی چالوں سے قائل ہونے والا نہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح نہیں دیکھا، یہاں تک کہ چشمے اور چھوٹے تالاب بھی خون میں بدل گئے ہیں۔ اس نے اپنے خدا کا نام کیا بتایا تھا؟
उन्हें ये कहते हुए कभी नहीं सुना। वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास हजारों खुदा हैं। दरिया नील का खुदा यकीनन नाराज है। इस बंदे मूसा ने बताया है कि उसका खुदा ही वाहिद खुदा है। वाहिद खुदा, ये तो बिल्कुल मजाक लगता है। दरिया के पानी को खून में बदलने के 7 दिन बाद खुदावन ने मूसा को मिस्र पर अपना कहर भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। पानी बकसरत मेंढक लाएं। खून की बदबू वाले पानियों में अचानक लाखों मेंढक पैदा हो गए। मेरा घर मेंढकों से भरा है। सारा मिस्र मेंढकों से भर गया। देवता नाराज है। हमारे पुजारी किधर हैं? क्या वो कुछ नहीं कर सकते? मैं मर गई। फिरौन देखो, हम जादूगर भी ये मेंढक बना सकते हैं। ये और मेंढक क्यों बना रहे हैं? क्या इस शख्स मूसा ने पहले ही हमें काफी मेंढक नहीं दे दिए? अब फिरौन भी हमें और मेंढक दे रहा है। क्यों नहीं उन्हें जैसा कि वो कह रहे हैं बियाबान में जाने की इजाजत दे देते? हम ये और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मूसा को बुलाओ, मुझे उसके साथ बात करनी है। जी मालिक, जैसे आपका इरशाद हो। यहोवा से कहो कि मेंढक खत्म कर दे। अगर वो ऐसा करे तो फिर मैं तुम्हारे लोगों को जाने और कुर्बानियां चढ़ाने की इजाजत दूंगा। मुझे बताओ कि कब तुम मेंढकों को मरवाना चाहते हो, और ऐसा ही होगा। कल सुबह तक। तेरे कहने के मुताबिक बिल्कुल इसी तरह होगा, ताकि सारे लोग जान लें कि यहोवा जैसा कोई और खुदा नहीं। जब फिरौन ने यह देखा कि मेंढक उसके मुकर्रर किए हुए वक्त पर मर गए तो उसने अपना दिल और सख्त कर लिया और इब्रानियों को जाने की इजाजत ना दी। ये यहोवा किस तरह का खुदा है कि उसने हमारी जमीनों को मेंढकों से भर दिया है? तुम्हें ये ख्याल किस तरह आया कि खुदा ने किया है? हो सकता है कि ये कोई सिर्फ कुदरती आफत हो। तो फिर मूसा को ये कैसे मालूम हुआ कि ये होने वाला है ताकि वो इसकी पेशेनगोई कर सके? और उसे किस तरह सही वक्त का भी इल्म था कि वो कब मरेंगे? अपनी बकवास बंद करो और बेलचा चलाओ, नहीं तो हम कभी भी ये काम खत्म नहीं कर सकेंगे। और यहोवा ने मूसा से कलाम किया, हारून से कहो कि हाथ बढ़ाकर जमीन की गर्द को मारे ताकि मिस्र की सारी खाक जुओं में बदल जाए। और मिस्र की सारी खाक जुओं में बदल गई। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम जुए नहीं बना सकते? लोग यही सोचेंगे कि उसका खुदा हमारे खुदा से ज्यादा कुदरत वाला है और तुम सिर्फ जादू की चालें ही चल सकते हो। लेकिन हजूर, यकीनन ये खुदावंद का ही काम है। कोई भी इंसान ये काम नहीं कर सकता जो कि उन दोनों ने किया है। हम बिल्कुल बेबस हैं। इसकी जरूर कोई कुदरती वजह होगी, पर हम ये और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मूसा को बुलाओ, उसे बताओ कि अगर उसका खुदा ये जुएं दूर कर देगा तो मैं उन्हें उनके खुदा की इबादत के लिए जाने दूंगा। जुएं खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं अपने गुलामों को जाने की इजाजत नहीं दे सकता। उसका खुदा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? खुदावंद ने मूसा से फिर कलाम किया और कहा, मैं मिस्र पर मच्छरों के गौल भेजूंगा, तुम्हारे घर मच्छरों से भर जाएंगे, लेकिन मैं इस दफ़ा मिस्रियों और अब्रानियों में फ़र्क रखूंगा। मेरे लोगों के दरमियान कोई मच्छर नहीं होगा। इससे हर कोई जान लेगा कि मैं इस सारी ज़मीन का खुदा हूँ। अब्बा जी, हमारे पुजारी इस आदमी को क्यों नहीं रोकते? इनकी जादुई ताकत कहाँ गई? मैं मजहब के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो बस अपना काम करता हूँ। बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसा कि उसने कहा था। इब्रानियों के दरमियान बिल्कुल मच्छर नहीं। ये यकीनन उनके खुदा का काम है। जाओ, मूसा को ढूंढो। जाओ, चले जाओ और अपने खुदावंद के आगे कुर्बानी चढ़ाओ, लेकिन मिस्र की जमीन ना छोड़ना। हमें कम अज कम 3 दिन का सफ़र करना है। मैंने कहा कि तुम जा सकते हो, लेकिन तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अब अपने खुदावंद से बात करो और उसे कहो कि इन गंदे मच्छरों को दूर करे। पूरे मिस्र में एक भी मच्छर जिंदा नहीं रहा।
अब लगता है कि ये कोई मौजज़ा है। बकवास बंद करो, तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि तुम इसकी बातों पर ईमान ला रहे हो। फ़िरौन ने अपना दिल सख्त कर लिया और लोगों को भेजने से इनकार कर दिया। खुदावन ने मिस्र पर एक और आफत भेजी। उनकी भैंसों, भेड़ों, सांडों, घोड़ों और ऊँटों में मरी फैल गई और वो मर गए, पर इब्रानियों के जानवरों में ये बीमारी ना फैली। हमारे सारे जानवर मर गए हैं, लेकिन तुम्हारे सारे हट्टे कट्टे हैं। तुम्हारे ख्याल में इस तरह क्यों हुआ? मूसा कहता है कि हमारे बुजुर्गों का खुदा उतर आया है ताकि हमें तुम्हारी जालिम कैद से छुड़वाए, लेकिन मैं एक सादा बंदा हूँ, मुझे इन बातों का ज़्यादा इल्म नहीं है। हमारे पुजारी हमारे देवताओं को चढ़ावे चढ़ा रहे हैं। हमारा मुकद्दस बैल गुस्से में आएगा और ये सब कुछ रोक देगा। फ़िरौन को बताओ कि बहुत देर हो गई है, हमारे सारे मुकद्दस बैल मर गए हैं। हमारे लोग बहुत नाराज हो जाएंगे जब उन्हें मालूम होगा कि हमारे देवता इब्रानियों के बेवजूद खुदा से अपने आप को नहीं बचा सके। मिस्रियों के देवता कहाँ हैं? क्या उनके पास कोई ताकत नहीं? पर फ़िरौन ने अपना दिल सख्त कर लिया। खुदावन ने फिर मूसा से कलाम किया और उससे कहा कि पूरे शहर पर राख छिड़क दो, तो मिस्री फोड़ों से भर जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि तुमने मेरे लोगों को जाने नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों पर शदीद फोड़ों की लानत भेजूंगा। ओहो नहीं, फिर नहीं। जादूगरों को बुलाओ, इनसे कहो कि अपनी सारी ताकतें इकट्ठी करें, देवताओं के आगे कुर्बानियां चढ़ाएं और इसे रोक दें। तुमने सबसे बड़े को बुलाया है। तुम्हें भी फोड़े निकले हैं? क्या तुम्हारे पास मूसा के खुदा के खिलाफ कोई ताकत नहीं है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम सब निकम्मे धोखेबाजों का टोला हो। तुम सिर्फ हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। तुम सब धोखेबाज हो। कहाँ है तुम्हारे देवता? सुबह सवेरे उठकर फ़िरौन के आगे जा खड़ा हो और उसे कह कि इब्रानियों का खुदा फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि अगली बला सबसे बदतर होगी। ये बहुत तबाही करेगी और तुम्हारे बहुत से लोगों को मार देगी। इससे तू जान लेगा कि मेरे जैसा कोई खुदा नहीं। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि मैं ही खुदा हूँ जिसने तुम्हें फ़िरौन बनाया। तुमने देखा कि मैं पहले से जानता था कि तुम अपना दिल सख्त करोगे और मेरे लोगों को जाने की इजाजत नहीं दोगे। तुम्हारी हठधर्मी की वजह से मुझे अपनी ताकत जाहिर करने और मेरे लोगों पर मिस्रियों के जालमाना बर्ताव की वजह से उनकी अदालत करने का मौका मिला। तुम सिर्फ अपने फायदे का ख्याल करते हो और मेरी मर्जी के खिलाफ काम करते हो। इसलिए कल मैं इसी वक्त औले और आग की बारिश भेजूंगा और जमीन पर इससे पहले कभी किसी ने इस तरह की चीज नहीं देखी होगी। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है कि हर कोई अपने आप को या जानवरों को जो उनके पास हैं अंदर संभाल ले, क्योंकि जो कोई भी बाहर हुआ मारा जाएगा। जिस तरह यहोवा ने फरमाया है उसी तरह हो। जिन्होंने इस तंबीह का लिहाज न किया और बाहर ही नहीं, इस तरह कैसे हो सकता है? आप बोले कच्चे ताकतवर देवता से हमें बचा। अब्बा जी, वो बंदा मूसा ये सब किस तरह करता है? क्या उसका खुदा हमारी तबाही और तूफान के खुदा सेद से ज़्यादा ताकतवर है? उसका दावा है कि सिर्फ एक खुदा है और ये सारे इब्रानी उसके बच्चे हैं, लेकिन किसी ने भी उसका खुदा ताकि इब्रानियों ने भी नहीं देखा। जिस तरह के उसका दावा है कि उसका खुदा सिर्फ वो है, और वह फ़िरौन को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें बियाबान में इबादत करने की इजाज़त दे। ए ताकतवर सेद, तबाही और तूफान के देवता, हम मिन्नत करते हैं कि इन तबाह करने वाले तूफानों को रोक दे। यकीनन तू मूसा के इस नजर न आने वाले खुदा से ज्यादा ताकतवर है। ये हमारे नज़दीक नहीं आती, बल्कि सिर्फ मिस्रियों पर है। पापा जी, मुझे डर लग रहा है। क्या आग और आने हमारे ऊपर भी गिरेंगे? नहीं बेटा, यहोवा मिस्रियों को उनकी नाफरमानी की सजा दे रहा है। वो उन्हें बता रहा है कि उनके तूफानों का खुदा सेठ उनकी मदद करने की ताकत नहीं रखता। ये तो बहुत ही डरावना है। मैंने यहोवा का गुनाह किया है। इब्रानियों का खुदा रास्तबाज है और मैं और मेरे लोग गुनहगार हैं। यहोवा को कह कि आग और ओले रोक दे, तो मैं फौरन तुम्हारे लोगों को जाने की इजाज़त दूंगा।
जैसे ही मैं शहर से बाहर निकलूंगा मैं अपने हाथ आसमान की तरफ उठाऊंगा और आफत रुक जाएगी। इससे तू जान लेगा कि ज़मीन यहोवा की है, लेकिन तू अपना वादा पूरा नहीं करेगा। तू अभी तक खुदा से नहीं डरा। जब फ़िरौन ने देखा कि तूफान रुक गया है तो उसने और गुनाह किया और अपना दिल सख्त कर लिया। उसने लोगों को जाने की इजाज़त ना दी। खुदा ने एक और आफत भेजी। टिड्डियाँ आईं और वो हर उस सब्ज़ चीज़ को जो तूफान से तबाह नहीं हुई थी खा गईं। इसके बाद टिड्डियाँ घरों में घुस गईं। माँ, माँ, इसे भी मारो। ओ नबातात के देवता गेब, क्या तू ये नहीं देख रहा कि इब्रानियों के इस खुदा ने हमारी फसलों के साथ क्या किया? ओसाइरस, आज अपने आप को ताकतवर साबित कर। फ़िरौन ने मूसा को बुलवाया और वादा किया कि उसके लोगों को जाने देगा, पर जब खुदावन ने टिड्डियाँ रोक दी तो फ़िरौन ने अपना दिल फिर सख्त कर लिया और अपने गुलामों को छोड़ने से इनकार किया। फिर खुदावन ने मिस्र पर शदीद तारीकी भेजी। 3 दिन के लिए बादलों वाली रात से भी ज़्यादा अंधेरा रहा, लेकिन इब्रानियों के घरों में बिल्कुल भी तारीकी नहीं थी। मैं तुम्हें इससे पहले भी मार सकता था, पर इससे ये साबित हो जाता है कि हमारे देवता तुम्हारे खुदा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं फिर कभी दोबारा तुम्हारा चेहरा ना देखूं, क्योंकि उसी दिन तुम मारे जाओगे। तुमने पहली दफा बिल्कुल सच कहा है। हम दोबारा फिर कभी एक दूसरे को ना देखेंगे। ऐ सूरज के देवता रा, हमारी सुन। 3 दिनों से तू अपने आप को हमसे छुपा रहा है। क्या तू इब्रानियों के इस खुदा को पछाड़ नहीं सकता? अब बस एक आखिरी आफत और है, फिर फ़िरौन हमें मिस्र को छोड़ते हुए देखकर खुश होगा। आज आधी रात को मिस्र की ज़मीन से तबाही गुजरेगी। हर खानदान का पलौठा बेटा मर जाएगा। खुदावंद इस रात में गुनाह की सज़ा देगा। लेकिन हमारे पेलोठों का क्या बनेगा? क्या वो भी मर जाएंगे? खुदा ने इन सब लोगों के लिए निजात का हुक्म दिया है जो ईमान रखते हैं, हत्ता के मिस्री भी। अब जाओ और एक नर भेड़ या बकरी का बच्चा लो। इसे आज शाम को मार के दरवाजे के एक तरफ या चौखट पर लगा देना। यहोवा ने फरमाया है, जैसे ही मैं आज रात मिस्र की जमीन में से पहलोठे बेटे मारते हुए गुजरूंगा, तो जब मैं तुम्हारे दरवाजों के बाहर खून लगा हुआ देखूंगा, मैं इस घर को छोड़ के आगे गुजर जाऊंगा और इधर पहलोठे नहीं मरेंगे। अपने अपने घरों में ही रहना और इसी भेड़ को पकाकर खाना जिसे तुम ज़िबा करोगे। अब अपने मिस्री मालिकों के पास जाओ और उनकी कीमती चीजें मसलन सोना, जेवर और चांदी ले लो। खुदावन ने इनके दिलों को नरम किया है, वो बहुत खुशी और बहुतात से देंगे। अपनी चीजें बांध लो और कल सुबह सवेरे जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोबारा फिर कभी यहाँ नहीं आओगे। मिस्र को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दो। ये तुम्हारे नए वक्त के लिए पहले दिन का आगाज होगा। अब्बा जी, हमारे पास सिर्फ यही एक भेड़ है, क्या हम रंग करने के लिए सुर्ख रंग इस्तेमाल नहीं कर सकते? बेटा, खुदावन ने फरमाया है कि भेड़ ज़िबा करके उसका खून दरवाजे की चौखट पर लगाना है। हमें बिल्कुल उसी तरह करना चाहिए जैसा कि खुदावन ने कहा है। तुमने देखा कि उसने नाफरमानी करने वालों की अदालत कैसे की। ये बर्रा तुम्हें मौत से बचाएगा। ये बर्रा मेरे लिए मरा है और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी पहलौठा बेटा हूँ। अम्मा, अब्बा जी क्यों इस दरवाजे को खून के साथ रंग रहे हैं? यहोवा ने फरमाया है, जब मैं दरवाजे पर खून लगा हुआ देखूंगा तो मैं जानूंगा कि तुम मुझ पर ईमान रखते हो और मैं इस घर में किसी को नहीं मारूंगा। तुमने भेड़ ज़बा करके इसका खून अपने दरवाजे पर क्यों नहीं लगाया है? हाँ, तुम इस तरह की तोहमाती बातों पर यकीन करते हो? दरवाजे की चौखट पर थोड़ा सा खून लगाने से किस तरह मौत अंदर आने से रुक सकती है? मेरा बेटा नहीं डरता। जोकीम, क्या तुम डरते हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा ख्याल है कि मैं लड़की हूँ? मज़हब सिर्फ कमज़ोरों के लिए है। एक अच्छा खुदा लोगों को इसलिए नहीं मारेगा कि उन्होंने थोड़ा सा खून अपने दरवाज़ों पर नहीं लगाया। इनका क्या बनेगा जिन्होंने नहीं सुना? अब्बा जी, ये रात बाकी रातों से मुख्तलिफ क्यों है?
کیونکہ آج رات خداوند ہر اس نر پہ لوٹے کو مارنے کے لیے تباہی بھیجے گا جو اس پر یقین نہیں رکھتا، لیکن جب وہ خون دیکھے گا تو اس گھر کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا۔ یہ ہمارے لیے نئے دنوں کا آغاز ہے۔ ہر سال اس وقت پر ہم اس فسح کو منائیں گے اور یاد کریں گے کہ خدا نے ہمیں فرعون کے ہاتھوں سے آزادی دلوائی تھی۔ او ابا جی، چیخیں سنیں، تباہ کرنے والا ضرور ادھر آیا ہے۔ ڈرو نہیں، ہم نے خداوند کی فرما برداری کی ہے۔ خون چوکھٹ پر لگا اور ہم برے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ میرا بیٹا مر گیا ہے، او خدایا کچھ کرو، موسیٰ کو بلاؤ۔ مجھے افسوس ہے لیکن بڑی دیر ہو گئی ہے۔ تم لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا لیکن تم لوگوں نے انکار کیا۔ مجھے دکھ ہے کہ آج رات بہت سے لوگ مر گئے ہیں۔ نہیں خداوند، میرا بچہ نہیں۔ جیسے جیسے تباہ کرنے والا اس شہر کے اوپر سے گزرتا گیا، ہزاروں مرتے گئے۔ جنہوں نے یقین کیا اور اپنے دروازوں پر خون لگایا زندہ بچ گئے۔ ہمارا بیٹا مر گیا ہے۔ جلدی جاؤ اور موسیٰ کو فوراً یہاں لے کر آؤ۔ یہ کیا؟ یہ اپنے خاندان کا پہلوٹا بیٹا تھا۔ فرعون نے موسیٰ کو دوبارہ بلوایا، لیکن فرعون نے موسیٰ کے چہرے کی طرف نہ دیکھا۔ میں نے گناہ کیا ہے، مہربانی کر کے مصر کی زمین چھوڑ دو اور اپنے ساتھ تمام عبرانیوں کو بھی لے جاؤ۔ تمہارا خدا یہوہ میری برداشت سے باہر ہے، جانے سے پہلے مجھے برکت ضرور دو۔ خداوند نے جیسے ان کے بزرگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ 400 برس بعد مصر چھوڑ رہے تھے۔ مصریوں نے عبرانیوں کو سونا، زیور، خوراک اور ہر وہ شے جس کی ان کو ضرورت تھی اور وہ جو کچھ لے جا سکتے تھے انہیں دی۔ یہ عبرانی بچوں کے لیے خوشی کا موقع تھا، ایک نئی قوم کا پہلا دن۔ 6 لاکھ آدمیوں نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کے وعدے کی زمین کی طرف سفر شروع کیا۔ خداوند نے دن کے وقت ان کو بادل کے ساتھ جو انہیں سائے میں رکھتا تھا اور رات کے وقت آگ کے ایک ستون کے ساتھ جو انہیں روشنی مہیا کرتا تھا رہنمائی کی۔ کیسی لگی آپ کو قسط؟ اب میں پوچھوں گی آپ سے سوال۔ پہلا سوال، خدا نے موسیٰ کو کس پہاڑ پر بلایا؟ آپشن اے کوہ سینا پر، آپشن بی کوہ ہمالیہ پر، آپشن سی کیٹو پر یا آپشن ڈی کوہ ہندو کش پر۔ سوال نمبر 2، خدا نے مصر پر کتنی آفتیں بھیجیں؟ آپشن اے 5، آپشن بی 10، آپشن سی 20 یا آپشن ڈی کوئی بھی نہیں۔ سوال دوبارہ سنیں اور دیکھیں۔ خدا نے موسیٰ کو کس پہاڑ پر بلایا؟ آپشن اے کوہ سینا پر، آپشن بی کوہ ہمالیہ پر، آپشن سی کیٹو پر یا آپشن ڈی کوہ ہندو کش پر۔ سوال نمبر 2، خدا نے مصر پر کتنی آفتیں بھیجیں؟ آپشن اے 5، آپشن بی 10، آپشن سی 20 یا آپشن ڈی کوئی بھی نہیں۔ آپ اپنے جوابات ہمیں واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0321 1138 296 یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ہے nekobud@gmail.com۔ تو جلدی کریں اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمیں کل اسی وقت تک اپنے جوابات سینڈ کریں اور پائیں اپنا بہترین تحفہ۔ سارہ جمیل کو اگلے وقت تک اجازت دیں۔ شکریہ۔